Hello students, I welcome you all in your biology class and we are going to begin our new chapter. It is tissues. But I want to recall from the previous chapter, cell, that organisms are made up of cells. We have studied there about the unicellular organisms like amoeba and multicellular organisms, how the cell play a very important role in the different functions like movement of the materials in and out, how it amoeba intake of food, gaseous exchange and excretion, and we have also seen how the cell organelles helps the cell to perform these functions. Each specialized function is taken up by the cell organelles. But in multicellular organism, how this function takes place accurately. So for this, the cells came together and form the groups of cells and carry out the particular function. For example, in human beings, we can see the muscles are there which are contracting and relaxing continuously and help in movement. Nerve cells are there which are carrying the messages. Blood cells are there which helps to transport the oxygen, food, hormones and other waste materials. As well as in plants also, some vascular tissues are there which conduct the food and water from one part to the another other parts of the plants. So means the multicellular organisms show division of labor, यानी उनमें कार्य का विभाजन होता है और वहाँ पर कोई भी फंक्शन जो है वो एक ग्रुप ऑफ सेल्स के द्वारा परफॉर्म करते हैं. Cells are specializing in one function and often grouped came together in the body and perform these functions. तो अब इस चैप्टर में हम इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से ये ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर के किसी भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसको किसी फंक्शन को करने में हेल्प करती है. Are plants and animals made of same type of tissues? This question arise in our mind. क्या प्लांट्स और एनिमल्स में एक जैसे ही सेल्स और टिश्यूज होते हैं? ऑफ कोर्स नॉट. हमने देखा है कि प्लांट्स के अंदर प्लांट सेल्स जो होती है उनमें सेल वॉल होती है, वैक्यूल्स होती हैं, और एनिमल्स सेल्स जो होती हैं उनमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स, लाइसोसोम्स वगैरह होते हैं. क्लोरोप्लास्ट वहाँ एब्सेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है. इस तरह के डिफरेंसेस हमने देखे थे. तो कैन बी से दैट ये जो टिश्यूज़ हैं इन प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में सिमिलर नहीं होते. डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव द परफॉर्म द सिमिलर फंक्शंस? क्या इनके फंक्शंस भी सिमिलर होते हैं? तो इट इज़ नोटिसेबल दैट डिफरेंसेस आर इन बिटवीन टू. जो प्लांट्स होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, उनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता है. और हम देख सकते हैं कि एनिमल्स में मूवमेंट होता है. दे आर moving here and there in search of food and to finding shelters and to meet mates. They consume more energy as compared to the plants. उनमें एनर्जी का कंजप्शन ज़्यादा होता है, so they perform in the other level. And there are other differences between animals and plants on the pattern of growth.
हम देखते हैं कि जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो एक लिमिटेड ग्रोथ होती है, जिसको कहते हैं डेफिनेट ग्रोथ होती है। और सम एनिमल्स आर ऑल्सो हैविंग सम डेफिनेट ग्रोथ। उनकी जो ऑर्गन्स की जो शेप साइज है वो थोड़ा बढ़ती है विद द एज, बट दे आर डिपेंड्स। प्लांट्स के अंदर कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो फास्ट ग्रो करते हैं, और इसी तरह से हम देख सकते हैं कि इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। प्लांट्स में भी अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं। जो हायर प्लांट्स होते हैं दे आर हैविंग सम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, और एनिमल्स में भी कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं, कॉम्प्लेक्स प्लांट्स हैं, दे आर हैविंग स्पेशलाइज्ड cells for the functions. So further we proceed, and we can justify it. There are two types of plant tissues, as two type of tissues. One is the plant tissues and one is the animal tissues. Now see in your NCERT book on page 69 the plant tissues we want to study, that is given as an activity. टेक 2 ग्लास जार्स एंड फिल दैम विद वाटर। हमको 2 ग्लास जार लेने हैं, उन्हें पानी से भर देना है। टेक 2 ऑनियन बल्ब्स एंड प्लेस 1 ऑन ईच जार। हमें प्याज लेनी है और हमें देखना है कि उसकी जो हेयर वाला पार्ट है, उसकी प्याज की जो रूट्स हैं, वो वाला पार्ट पानी की तरफ हो। एंड पुट दैम ओवर द ग्लास जार्स के ऊपर रख देंगे, as you can see in the figure, and observe the growth of roots in both the bulbs for few days. और हम कुछ दिन के लिए इस सिस्टम को ऐसा ही रखेंगे और मेज़र करेंगे उनकी लेंथ को, रूट्स की जो लेंथ। आपने सबने प्याज देखा होगा, उसके ऊपर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, वो उसकी रूट्स होती हैं। ऑन द डे 4th कट द रूट टिप्स ऑफ द ऑनियन बल्ब इन जार 2 पे जो प्याज रखी है, उस अनियन का जो रूट टिप है उसको हम 1 सेंटीमीटर तक कट कर देंगे। आफ्टर दिस ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट्स इन बोथ द जार्स एंड मीजर देयर लेंथ्स ईच डे फॉर 5 more days। अब हम 5 और दिन आगे के उसको लेंथ को ऑब्ज़र्व करेंगे, और एक टेबल यहाँ बनाया है, उसमें हम उनकी लेंथ को सेंटीमीटर्स में या मिलीमीटर्स में लिख सकते हैं। नाउ व्हाट विल वी ऑब्जर्व? द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन इज देयर, विच ऑफ द 2 onions हैज़ लॉन्गर रूट्स? थिंक। Means in jar 1 and jar 2, which onion will get the longer roots? Of course, your answer will be right. That is jar number 1. And the reason is asking here why it happens. Children, you know that we have cut the roots of the onion number 2. हमने onion 2 की roots को cut किया था, तो वहाँ पे जो एपिकल पार्ट था उसका ग्रोथ का, वो हमने हटा दिया था। दैट्स वाई उसकी जो ग्रोथ है वहीं रुक गई, और जो जार 1 पे अनियन था उसकी रूट्स की ग्रोथ होती रही। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, डू द रूट्स कंटिन्यू ग्रोइंग इवन आफ्टर वी हैव रिमूव देयर टिप्स? आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि रूट ऑफ द जार नंबर 1 पे जो अनियन था उसकी रूट्स तो रेगुलर ग्रोथ कर रही थी, बिकॉज इट वाज हैविंग द रूट टिप पार्ट। बट जो सेकेंड नंबर का अनियन है उसका रूट टिप हमने कट कर दिया था। वाई वुड द टिप्स स्टॉप ग्रोइंग इन जार 2 आफ्टर वी कट दैम? बिकॉज वी हैव रिमूव द टिप पार्ट, उसे एपिकल पार्ट भी कहते हैं। तो ऑन दिस बेसिस वी कैन अंडरस्टैंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द सम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। नाउ see that tissues, group of cells having a common origin and similar functions are termed as tissues। जो cells होती हैं वो
एक तो उन ग्रुप में है और उनका जो ओरिजिन है जहाँ से वो बिगनिंग हो रहा है, स्टार्ट हो रही हैं, उनका ओरिजिन सेम होना चाहिए और उनका फंक्शन सेम होता है। ऐसे ग्रुप को सेल्स के हम टिश्यूज़ कहते हैं। As I told you that there are two types of tissues we studied in the biology. One is the plant tissue and another is animal tissue. तो plant tissues on the basis of dividing capacity, जैसा हमने अभी देखा कि ग्रोथ से रिलेटेड बात था, तो डिवाइडिंग कैपेसिटी के बेस पर देर आर टू कैटेगरीज आर देयर. फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड अनदर वन इज परमानेंट टिश्यूज. In your syllabus, these two types of tissues, meristematic and permanent tissues, on the basis of dividing capacity are given. So let's see. The first one is meristematic tissue. Meristematic tissues. These are found on the plants of the growing region, like root, like stem, and the leaves which are attached on the stems. So what is the speciality of this meristematic tissues? They are very active and dividing continuously because of the prominent nucleus. They are having dense cytoplasm and very thin cell wall which is made up of cellulose, and you can see in the diagram there is no space in between them. In permanent tissues, we will see that some types of permanent tissues are having the space and some are not having. But here the thin cell wall and dense cytoplasm is there, and the vacuoles are almost absent, and there is no intercellular space. So on the basis of their position, we studied about the meristematic tissues. On the basis of location of these meristematic tissues in the plant body, there are three types of meristems. One is apical meristem. They are present at the growing tips of stem and root. Means ये ग्रोइंग पार्ट पर प्लांट्स के होते हैं. जैसे कि हमने पढ़ा है कि जब सीड्स जर्मिनेट होते हैं तो उस टाइम पर प्ल्यूमुल से तो स्टेम ग्रो होता है और रेडिकल से रूट ग्रो होती है. तो एक की तो जियोट्रॉफिक ग्रोथ होती है और दूसरे की फोटोट्रॉफिक यानी कि सनलाइट की तरफ ग्रोथ होती है अगेंस्ट ग्रेविटी. तो ये दोनों तरह की जो ग्रोथ है ये आगे के उसके जो पॉइंट पर टिश्यूज़ होते हैं वो उसकी लेंथ को बढ़ाते हैं, एलोंगेटेड करते हैं. तो यहाँ पे फंक्शन भी इसका लिखा हुआ है, टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स. इसके बाद सेकेंड कैटेगरी है इंटर कैलरी मेरिस्टेम. दे आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स और इंटरनॉट्स. आपने देखा होगा कि स्टेम्स पर ब्रांचेस निकली रहती हैं, मेन स्टेम से ब्रांचेस निकलती हैं और कुछ लीव्स भी उस पर अटैच्ड होती हैं. तो ये जो वहाँ से जहाँ से इनका निकलने की जगह है, ओरिजिन हो रहा है, उस जगह को हम इंटर कैलरी मेरिस्टेम टिश्यूज़ वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. देयर इम्पॉर्टेंट फंक्शन फॉर द लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. और थर्ड वन है लेटरल मेरिस्टेम. लेटरल मेरिस्टेम जो है दे आर प्रेजेंट of the stems and roots on the lateral sides. ये उसकी गिर्द को बढ़ाते हैं, increase the thickness of stems and roots. ये इनका important function है. Now we will study about the permanent tissues in our next lecture. Till then you should revise about the differences between the plant tissues and animal tissues, and about the meristematic tissues and its types, and try to answer these questions on page 69. What is a tissue and what is the utility of tissues in multicellular organisms? Thank you.